ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ 13th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਇਤਨ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.4 ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਾਈਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਫੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੇ ਦਾ, whose surface area ਜਿਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 154 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਰੇਡੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ r ਮੀਨਸ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 154 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4πr ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 4πr ਸਕੁਅਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 154 ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਗੁਣਾ 22/7 ਇੰਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 154। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਧਰ ਆਹ 154, ਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਇੱਧਰ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਟੇ ਆਹ 4 ਤੇ 22 ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਗੁਣਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। 22 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 154 ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 ਤੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਇੰਟੂ 7 ਓਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਇੰਟੂ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਓਵਰ 2 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ 2 ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ, ਸੋ 7/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ r ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7/2 ਤੇ 7/2 ਹੁੰਦਾ 3.5 ਜਦੋਂ 7 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਨ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1/4 ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 1/4 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ? ਮੂਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮੂਨ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1/4 ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅਰਥ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅਰਥ is equals to capital D, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ d ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅਰਥ, ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ d/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ r ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ r, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ r ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮੂਨ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ d/4। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਆਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਆਸ d, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। is equals to d/2। ਫਿਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਨ ਦਾ ਵਿਆਸ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੰਨ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਮੂਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ, d/4 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ d/8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ।
तो इनू लिखा जाएगा पंजाबी च चंद दा अर्धव्यास। सो हुण अपने कोल दोनों के अर्धव्यास हैगे ने, एक आह ते एक आह अपने कोल। हुण आपां उन्हां दे सरफेस एरियाज की रेशो कढदे हां, रिक्वायर्ड रेशो या रेशो ऑफ सरफेस एरियाज। यानी कि सतह दे खेतर फलां दा अनुपात। हाँ जी, ये बराबर आएगा अपने कोल सरफेस एरियाज की जिहड़ी रेशो कड्ढण टाइम उन्होंने कहा सी, पहलां गल होई सी अपने कोल मून दी। सो चंद दा सरफेस एरिया उपर लवांगे, नीचे लवांगे धरती दा। सो 4 पाए स्मॉल आर स्केयर उत्ते बटे 4 पाए कैपिटल आर स्केयर। तो स्मॉल आर है अपने कोल जिहड़ा मून दा रेडियस है, यानी कि चंद दा अर्धव्यास है, उन्होंने छोटा आर लै रहे हैं आपां। 4 पाई नाल 4 पाई हो जाएगा कैंसल, छोटे आर बटे वड्डे आर दा स्केयर। स्केयर आपां कॉमन कर लिया। हुण भरदे इन्हां दीयां वैल्यूज। छोटे आर दी वैल्यू है डी बटे 8, सो डी बटे 8 बटे वड्डे आर दी वैल्यू जो कि है डी बटे 2 उसका स्केयर। फरदर इनू लिख लांगे आपां डी ओवर 8 इंटू, जदों एवें अपने कोल 4 टर्म्स हुंदियां ने ए बटे बी बटे सी बटे डी, तो इनू सिंपलीफाई आपां किवें करदे हुंदे आ, ए बटे बी आ जांदा हुंदा गुणा, आ उल्ट जांदी हुंदी है डी उत्ते सी हेठां। सो आही चीज़ आपां इत्थे करन लगे आ, थल्ले वाली नू उल्टा दांगे तो ये बन जाएगा 2 बटे डी, आ बन जाएगा 2 बटे डी। तो फिर उसका स्केयर तो अपने कोल हैगा ही है, आ डी नाल डी कैंसल हो जाएगा, आ 2 दे टेबल च 8 कैंसल होएगा 4 ते। सो अपने कोल अल्टीमेटली बचेगा 1 बटे 4 दा स्केयर, जो कि आ जाएगा 1 बटे 16, यानी कि 1 अनुपात 16। सो 1 अनुपात 16 आ जाएगा अपने कोल आंसर, यानी कि रिक्वायर्ड रेशो। हुण आने क्वेश्चन नंबर 8 ते। हैमीस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। अपने कोल एक अर्ध गोलाकार कटोरी है जिहड़ी कि स्टील की बनी हुई है। हाँ जी, इस तरह की होएगी अपने कोल कटोरी, ये बनी हुई है स्टील की। तो उन्होंने कहा है कि इसकी जी थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। सो यदि जेकर आप थिकनेस दिखानी होवे तो इनू आप इस तरह दिखा सकते हैं कि आ यदि जी थिकनेस है इत्थों की लैके इत्थे तक वो है 0.25 सेंटीमीटर। तो अंदर होएगा इसका अर्धव्यास, तो जोड़ा अर्धव्यास है इनर रेडियस वो दिता होया 5 सेंटीमीटर, यानी ये है अपने कोल 5 सेंटीमीटर। तो आ इस तरह होएगी फिर, यानी कि सो इन्ने क विच मटीरियल आएगा, आ उहदी सारी थिकनेस होगी। फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि बाहरी जिहड़ी है उसकी टेढ़ी सतह उसका खेत्रफल आपां पता करना है। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहला तो जिहड़ी बाहरी सतह है उहदे लई आपां नूं जिहड़ा है उसका बाहरी अर्धव्यास चाहिदा होएगा। सो अंदरूनी अर्धव्यास दे विच 0.25 ऐड करके पहला आपां बाहरी अर्धव्यास कड्डांगे, उत्थों फिर आपां आ वाला जिहड़ा फार्मूला है हैमीस्फीयर दा 2 पाई आर स्केयर, आ वाला फार्मूला यूज़ करांगे उसकी बाहरी सतह दे लई, क्योंकि यह होएगी अपने कोल 2 पाई आर स्केयर दे इक्वल। फाइन, पहला हुण लिखदे आ इनर रेडियस। फाइव सेंटीमीटर, यानी कि अंदरूनी अर्धव्यास। उस तो बाद थिकनेस यानी कि मोटाई, वो है अपने कोल 0.25 सेंटीमीटर। तो फिर आ जाएगा बाहरी अर्धव्यास, यानी कि कैपिटल आर, जो कि अंदरूनी अर्धव्यास दे विच थिकनेस यानी कि मोटाई नूं जोड़ के मिलेगा। इनू लिखांगे आउटर रेडियस। ओके, ये आ जाएगा अपने फिर कोल फिर ओके, फिर यह आ जाएगा अपने कोल 5.25 सेंटीमीटर। हुण बाहरी सतह का खेत्रफल, बाहरी टेढ़ी सतह का खेत्रफल, यानी कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाए, हाँ जी कैपिटल आर यूज होएगा। सो इत्थे कैपिटल आर लिख सकते हो, इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू यह आ जाएगा 5.25 इंटू 5.25।
पॉइंट हटावांगे हेठां 100, ਇਹਦਾ भी पॉइंट हटावांगे हेठां 100। ओके, उस तो बाद हुण आपां देखदे हां कि कटिंग पॉसीबल है अपने कोल 525 ते इधर आह अपने कोल 100। 525 25 के पहाड़े च 25 दूना 50, फिर 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 के पहाड़े च 4, 2 ते 2 के पहाड़े च 22, 11 ते। ओके, इन्ना हो गया। उस तो बाद आपां आह देखते हैं कि 7 ते कैंसल होंदा, 7 7 49, 50 51 52, 3 35। हाँ, इनू 7 के टेबल च कैंसल कर देंगे आपां। सो 7 7 49, फिर 3 35, 7 5 35, आ जाएगा 75। फिर अगे आप इसकी कटिंग नहीं करते क्योंकि 100 पूरा नहीं कट होना अपने कोल। हुण आपां इन्हां नूं गुणा करते हैं तो 100 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लगा देंगे। सो जो इनू आपां गुणा करांगे 75 नूं 21 नाल गुणा करते हैं, 75 150, इत्थे कट गया जी कि 1575 आ गया ये अपने कोल। तो 1575 की हुण आपां 11 दे नाल गुणा करनी है। सो 5 7 5 1 5 7 5 12 1 7 1 8 5 13 1 5 6 7 17 325 बटे आह 100 है जोड़ा। सो ये करके आ जाएगा 173.25 तो सेंटीमीटर च सी। सो सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आ जाएगा अपने को इस क्वेश्चन का आंसर। आने आपां एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन ते 9th क्वेश्चन ते राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिवें कि तुसीं देख सकते हो एक सिलेंडर है, बेलन है, जस्ट एनक्लोजिज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इहदे विच एक गोला जिसका कि अर्धव्यास आर है वह पूरा पूरा आ रहा है, कोई आले दुआले जगह नहीं बची हुई, पूरा पूरा आंदा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपां पता करना है फस्ट पार्ट दे विच। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसदी आ जिहड़ी कर्व्ड सरफेस है इसका खेत्रफल पता करना है आपां। तो उस तो बाद दोनों जो दोने आंसरस आएंगे पहले तो दूजे उन्होंने रेशो यानी कि उन्होंने अनुपात कढ़ना है आपां तीजे के आंसर के लिए। सो इसका सल्यूशन देखते हैं अपने को। पहला तो जोड़ा है यह स्फीयर उसका रेडियस है आर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बस फॉर्मूला ही लगना है, तो यह फॉर्मूला लगा के अपना फस्ट का आंसर आ जाएगा। पहला लिख लें रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू आर, यानी कि गोले का अर्धव्यास। हुण गोले का अर्धव्यास है, सो गोले की सतह का खेत्रफल, गोले की सतह ये पहले का आंसर होएगा दा खेत्रफल मीनस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर। ये आ गया फस्ट आंसर अपने को, आंसर नंबर 1। फिर दूजा पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उस दे लई अपने कोल फॉर्मूला हुंदा है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हुण अपने कोल आर तो है क्योंकि जो गोला है पूरा पूरा इस फिट आंदा है। सो सिलेंडर के लिए भी आर जोड़ा है वह जिन्ना स्फीयर का गोले का अर्धव्यास है उन्ना ही सिलेंडर का हो जाएगा। सो आर वाला केस तो अपना मुक गया। हुण आपां नूं सिलेंडर की जी हाइट है एच वो चाहिए है, आ वाली हाइट एच। आप देख सकते हैं जो गोला है वह पूरा पूरा सिलेंडर के समा रहा है। जे इधर नूं यह आर है तो हर पासे नूं इसका अर्धव्यास आर होएगा। सो हेठां नूं भी यह आर होएगा तो उत्ते नूं भी यह आर होएगा। सो यह आर ते आर अपने कोल बन जाएंगे 2 आर। सो एच की जगह भरिया जाएगा 2 आर। सो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 2 इंटू आर दे इक्वल। सो इत्थे लिखते हैं आप हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी अपने कोल 2 आर एच की वैल्यू। हुण आपां इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन दी टेढ़ी सतह का खेत्रफल 2 पाई आर एच। ओके, वैल्यूज भरते हैं 2 पाई आर, आर की जगह आर ही आ जाएगा, एच की जगह आएगा अपने कोल 2 आर। सो 2 आर आ जाएगा नाल 2 इंटू 2 यह आ जाएगा 4 नाल पाई नाल आर इंटू आर, आर स्क्वेयर 4 पाई आर स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा अपने को आंसर नंबर 2। सो दूजे का आंसर भी सेम आ गया जो पहले का आंदा पाया सी 4 पाई आर द स्क्वेयर। हुण इन्हां दी रेशो कढ़नी है, रेशो क्योंकि सेम ने कट्टणगे एक दूजे दे नाल ते आपां नूं 1:1 इसका आंसर मिलेगा। सो थर्ड का आंसर आपां इत्थे कर लैंदे हां रिक्वायर्ड रेशो
यानी कि लोड़ींदा अनुपात बराबर 4πr² पहले का आंसर बटे 4πr² दूजे का आंसर, ये आपस च कट्टे गए 1:1 अपने को आ जाएगा इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 13.4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।